Morning everyone. In the earlier video, we have find the value of displacement, that is x equals to a sin omega t plus phi. In some cases, in some book in earlier, instead of phi, there should be an alpha. So no matters, you have to continue with the one constant. So we'll continue with the phi. Now there are the two cases it will be asked in the examination. So case number 1 will be when the particle starts from the mean position. Particle starts from the mean position. So these are the cases which will be individually can also be asked or in continuation with the displacement, that is we have the value of displacement and also discuss the two cases. So for each case there will be an 1 marks. So what is the condition at the mean position? That is displacement will be equals to 0 and t will be also equals to 0. That is particle is yet to start its motion. So in that case, we can write from this equation, that is x, putting the value of x equal to 0 and t is equal to 0. What is our purpose? We are going to find the value of what will be the value of phi and putting here. So 0 will be equals to a sin 0 plus phi. What this implies? It implies that a sin phi will be equals to 0. So anything if sin a equals to a sin phi will be equals to 0, which implies that sin phi will be also equals to 0. So in that case we are going to find the value of phi, that is the angle. So phi sin कब आपका 0 होने वाला है? When phi will be either equal to 0 or pi. So in the both cases 0 or pi, sin की वैल्यू आपकी 0 हो जाने वाली है. Sin 0 is 0 and sin 180 is also equals to 0. So what you get, so phi is going to be cancelled and you get the value of displacement that will be equals to a will be equals to sin omega t. So what is the equation? X equals to a sin omega t in which condition? When the particles start from the mean position. ठीक है, ये होगा आपका 1 मार्क्स के लिए डेरिवेशन. केस नंबर 2 या फिर सिर्फ आपको 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है इन एसएचएम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंपल इन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट when the particles start from the mean position. So you have to write x equal to a sin omega t and not x equals to a sin omega t plus phi. ये नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? When the particles start from the mean position, x की वैल्यू आपकी होने वाली है, that is displacement will be equals to a sin omega t. Now the second condition, when the particles start from the extreme position. So आपके बुक में एक मेंशन किया गया है कि पार्टिकल तो अपना काम करते रहता है, क्या हमने उसको पकड़ के नहीं रखा है कि भाई आप मीन पोजीशन से स्टार्ट करो या फिर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करो. इट इज द ऑब्जर्वर विच इज फॉर देयर कन्वीनियंस दे आर कंसिडरिंग कि सपोज पार्टिकल मोशन में आ रहा है, ये यहाँ से है 0 पोजिशन में, ये आपका मीन पोजिशन में होगा, तो पार्टिकल विल बी मूविंग लाइक दिस, इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा. ठीक है, सो ये हो गया आपका राइट में रहता है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, राइट में चला गया. निगेटिव हो गया अगर वो लेफ्ट में चला गया तो वी विल कंसिडरिंग इट टू बी ए नेगेटिव कंडीशन. ठीक है, दिस इज द कंडीशन अंडरस्टैंडिंग के लिए है. तो राइट में अगर जा रहा है, यहां से मोशन करके टू एंड फ्रो मोशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो राइट में जाएगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव. नाउ द सेकंड केस फॉर द पार्टिकल्स स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन. सो इन दैट केस पार्टिकल यहाँ ये होती है आपकी एक्सट्रीम पोजिशन, राइट में एक्सट्रीम यहाँ पर होगी, यहाँ पर भी एक्सट्रीम पोजीशन होती है. तो क्या होता है, पार्टिकल ने अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है. सो इन दैट कंडीशन क्या होता है, x विल बी इक्वल टू आइदर प्लस और माइनस a. सो आर कंसिडरिंग द बोथ कंडीशन, लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी कंसिडर कर रहे हैं, लेफ्ट वाली भी कंडीशन कर रहे हैं. सो x विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस a. और कभी भी जब भी मीन पोजिशन से स्टार्ट कर रहा है या फिर एक्सट्रीम पोजिशन से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, इन बोथ द केसेस टाइम आपका 0 रहेगा क्योंकि पार्टिकल का मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है. सो एट द एक्सट्रीम पोजिशन व्हेन पार्टिकल एट द मैक्सिमम पोजिशन, टाइम आपका हो जाएगा t विल बी इक्वल्स टू 0. अगेन पुटिंग इन दिस कंडीशन व्हाट यू गेट, a विल बी इक्वल्स टू a sin omega t plus phi. अगेन व्हाट यू आर गोइंग टू कंसिडरिंग फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ phi. ये ध्यान में रखे क्या निकलने वाला है. यहाँ पर भी अपने phi निकाला था, यहाँ भी हम निकालेंगे phi. So 1 is going to be cancelled, a is going to be cancelled. You got the value that is sin omega t plus phi will be equals to 1. तो साइन का वैल्यू कब जब होगा, जब आपका ये एंगल जो हो जाता है, यहाँ पर भी हम t लिखना भूल गए. इट शुड बी लाइक 1 is going to be, so it should be
साइन 0 plus phi will be equals to 1. Okay, because t should be written to be 0. ठीक है, which implies sin phi will be equals to 1. phi कब होगा 1? जब आपका phi होता है either 90, sin 90 is 1 या फिर it will be equals to 3 pi by 2. ठीक है, in the both condition put the value कहाँ रखने वाले हैं हम फिर से डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल वाले कंडीशन में. सो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. अब फॉर्मूला क्या लगता है आपका? साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा will be equals to sin 90 plus theta, that is always will be equals to cos theta. ठीक है, सो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एंड देयरफॉर x बिकम, क्योंकि हमने किसकी वैल्यू रखी है, y की वैल्यू रखेंगे हम लोग. सो x विल बी इक्वल्स टू a cos प्लस और माइनस a cos ओमेगा t. पाई बाय 2 के लिए आपका प्लस आता है और माइनस विल बी कमिंग फॉर 3 पाई बाय 2 के लिए. सो यू गॉट द टू वैल्यूज. The next question will be you have to find the expression for velocity and acceleration when the displacement is given when the motion at time t. तो शुरू में हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है दैट इज x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा. उसको डिफरेंशिएट करके यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन. सो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू dx बाय dt. सो डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका किसका, इक्वेशन नंबर 1 का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So dx by dt will be equals to a keeping to be constant. Sin का होता है cos. So cos omega t plus y और omega t again the constant. So that will be equals to differentiate होगा तो उसका आ जाएगा omega. ये सबको पता है, इन जनरल मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ तक तो शायद आपका हो ही जाएगा. सो अलग से मैथ्स में यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी और आपको रिमेंबर हो ही करना ही है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू a ओमेगा cos omega t plus phi, that is the value of dx by dt and nothing but the velocity. तो velocity का आपके पास में एक्सप्रेशन आ गया. कहाँ पे यूज होने वाला है ये सारा आपको, when आपको पूछा जाता है कि what is the minimum and maximum value of the displacement. तो मिनिमम वैल्यू हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का हमेशा जब वो कंप्लीट कर लेगा मोशन दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा, और वेलोसिटी जो होती है जब मोशन स्टार्ट होता है तब मैक्सिमम रहता है एंड आफ्टर दैट आपका वेलोसिटी जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल जाएगा तो आपका वेलोसिटी कम हो जाता है, जीरो हो जाता है. वेलोसिटी निकल चुका है, अभी हमको करना है एक्सेलरेशन निकालेंगे. अगेन द सेम प्रोसीजर, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू स्मॉल a. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन. सो ये वाला जो हमारा आया है इक्वेशन नंबर 2 दैट वाज फॉर वेलोसिटी, उसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So what you get, a will be equals to d by dt of a omega cos omega t plus phi. इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा. कांस्टेंट विल बी क्या क्या है आपके पास में, a that is amplitude, omega will be also outside. Now d by dt of cos theta will be equals to sin theta and minus sin theta. So that will be equals to minus sin omega t plus phi. Again करेंगे omega का differentiation, that will be equals to omega and you got the value minus a omega square sin omega t plus phi. Okay, so we can write over here, this is the expression for acceleration माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. अगर हम देखते हैं तो क्या था इक्वेशन 1 में, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वॉज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट. तो आपके पास में ए विल बी इक्वल्स टू माइनस ए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ये आ गया है, मतलब हमने जहाँ से शुरू किया था वी आर बैक एट दैट कंडीशन. तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है इट इज फाउंड टू बी करेक्ट. तो दिस वाज द
expression for displacement, velocity and acceleration at time t. वेलोसिटी निकल चुका है, अभी हमको करना है एक्सेलरेशन निकालेंगे. अगेन द सेम प्रोसीजर, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू स्मॉल a. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन. सो ये वाला जो हमारा आया है इक्वेशन नंबर 2, दैट वाज फॉर वेलोसिटी, उसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो व्हाट यू गेट, a विल बी इक्वल्स टू d by dt ऑफ a omega cos omega t प्लस फाई. इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा. कांस्टेंट विल बी क्या क्या है आपके पास में, a दैट इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा विल बी ऑल्सो आउटसाइड. नाउ d by dt ऑफ cos theta विल बी इक्वल्स टू sin theta and minus sin theta, so that will be equals to minus sin omega t प्लस फाई. अगेन करेंगे ओमेगा का डिफरेंशिएशन, दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा एंड यू गॉट द वैल्यू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाई. ओके, सो वी कैन राइट ओवर हियर दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाई. अगर हम देखते हैं तो क्या था इक्वेशन 1 में, a sin omega t plus phi was nothing but the displacement. तो आपके पास में a will be equals to minus a minus omega square x. ये आ गया है, मतलब हमने जहाँ से शुरू किया था we are back at that condition. तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है it is found to be correct. तो this was the expression for displacement, velocity and acceleration at time t. Continuation में हम फाइंड करेंगे minimum and maximum value for the displacement, where it is going to be asked in the MCQ, in the 1 marks question. So it is supposed to be, you should know the value and how you are going to find it. लोग ऐसे ही याद भी कर लेंगे कि मिनिमम वैल्यू उसका हमेशा 0 होने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू उसका a ही होने वाला है. पर कैसे आता है ये हम देख लेते हैं. कहाँ से स्टार्ट करना है, हमको क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू. डिस्प्लेसमेंट कितना है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई. सो मिनिमम कंडीशन के लिए हमने जो लिखा था उसमें क्या लिखा था हमने, एट द मेन पोजीशन व्हाट हमने क्या फाइंड किया था कि ये जो एंगल आपका आता है ओमेगा t प्लस फाई की वैल्यू इज कमिंग टू बी कितना आई थी, एंगल दैट वाज इक्वल्स टू 0 और 5. ये कैसा आया था पहले के वीडियो में हम देख लेंगे, जहां हमने निकाला था केस 1 एंड केस 2 स्टडी किया था डिस्प्लेसमेंट का. केस 1 की मिनिमम पोजीशन से अगर पार्टिकल स्टार्ट करता है तब यू गॉट द वैल्यू ऑफ, वहां पर t भी 0 था, यहाँ पर भी रहेगा. सो यू गॉट द एंगल, मैंने बोला था कि फाई आपको निकालना है, पर अगर हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ये आपका एंगल रहेगा 0 और 5. अगर ये 0 हो जाता है, अगर साइन 0 विल बी इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू द वैल्यू 0. कहाँ पे आई है हमारी मीन पोजीशन. ध्यान में क्या रखने की बात है कि मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, बस यही ध्यान में रखना है. सिमिलरली एट द एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन आपको पता है क्या था, आपका एंगल कितना आया था, ओमेगा टी प्लस फाई इज कमिंग टू बी आइदर पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2. तो उससे क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू आपका x आ जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई को हम रिप्लेस करेंगे पाई बाय 2 से. सो साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 और साइन 3 पाई बाय 2 दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1. ओके, सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ x टू बी इक्वल्स टू प्लस और माइनस a. ध्यान में रखने वाली बात इतनी है कि मेन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, एक्सट्रीम पोजीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा मैक्सिमम प्लस और माइनस. ये डेरिवेशन अगर आपने नहीं भी ध्यान में रखा तो फिर इतना ही ध्यान में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे 0 है, मेन पोजीशन में, एक्सट्रीम पोजीशन में वो मैक्सिमम रहने वाला. कैसे डिराइव किया गया वो बुक में दिया है, पर ध्यान में रखने वाली बात इतनी है, इसके डेरिवेशन पे आप ना ही ध्यान दे तो अच्छा है. सर जितना पूछा जाता है उतने ही पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हम अपना टाइम भी बचाएंगे. एंड नेक्स्ट विल बी वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ velocity
when it will be minimum and what will be the maximum position. तो हमको पता ही है what was the expression. अब जो हम इक्वेशन यहाँ पे लेने वाले हैं फॉर द वेलोसिटी, वो ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट होता है, ये नहीं रहेगा जो हमने डिराइव किया था. कहाँ से? डिफरेंशिएशन से. कभी कभी अगर पूछा जाए आपको कि हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन पोजीशन, तो आपको ये लिखना जरूरी हो सकता है. मेनी टाइम्स सच क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड, दे विल बी जस्ट आस्किंग. पर कभी कभी पेपर सेटर को लग भी सकता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेना चाहिए, तो इसलिए पढ़ाई कर लो तो अच्छा रहेगा. सो वैल्यू ऑफ द, आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू. एक्सप्रेशन आपका जाएगा जो हमने डिराइव करा था, कहाँ से? डिफरेंशिएशन इक्वेशन से. दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये वाला एक्सप्रेशन हम निकालेंगे. विल बी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. वेलोसिटी की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू यूज करना, फाइंड करना काफी इजी है, क्योंकि हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड को, मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन. सो वही यूज करके आपको इजीली फाइंड हो जाएगा. सिर्फ ध्यान में रखेंगे कि एक्सप्रेशन हमारा ये है जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से डिराइव किया है. सो एट मीन पोजीशन वी नो क्या होता है, x विल बी इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. पुट द वैल्यू हियर, v will be equal to plus or minus omega a square minus 0. तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ a square will be equals to a omega. So v will be equals to a omega. So that is the maximum value of the velocity. ये किसके लिए यूज होगा आपको? That will be used for the numericals. अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका न्यूमेरिकल वाला कंडीशन. वेलोसिटी का यही फॉर्मूला ध्यान में रखो, v max will be equals to a omega. दिस इज एन बेसिक फॉर्मूला जिससे आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे से करते हैं और करना भी चाहिए. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी, टेक्स्ट मी इन द वीडियो. आप वहाँ लिखो और मुझे बताओ. तो हमने मीन पोजीशन पे क्या निकाला है? v max हो गया आपका. इसके लिए बेसिक क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व किए हैं, वो आपको करना ही है. इट इज़ वेरी इजी. और बोर्ड भी चाहता है कि आप क्वेश्चंस करो ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाए. ठीक है. देन दैट वाज फॉर दी, कहाँ पे मिल रहे हैं हमको? मेन पोजीशन में. सेकंड विल बी एट द एक्सट्रीम पोजीशन. जब भी हम मीन एंड मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, हमको 2 ही चीज ध्यान में रखनी है कि भाई वैल्यू मीन पोजीशन पे कहाँ है और एक्सट्रीम पोजीशन पे कहाँ है, कितनी होती है, बस वो निकालो, वही आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. तो एट द एक्सट्रीम पोजीशन हमने कहा था कौन सा एक्सप्रेशन लगेगा? v विल बी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. क्या करना है इसको? यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x. एक्सट्रीम पोजीशन मतलब पार्टिकल ने आपका अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है. सो दैट विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस a. पुट करेंगे यहाँ पे. यू विल गॉट ओमेगा ए स्क्वायर, माइनस का भी स्क्वायर लेंगे तभी वो ए स्क्वायर आने वाला है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 0. मतलब एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी जो होती है इट इज गोइंग टू बी 0. अपनी पूरी एनर्जी खत्म कर देता है. सो मैक्सिमम वैल्यू v max विल बी इक्वल्स टू a ओमेगा. कहाँ पे आ रही है? मेन पोजीशन. सेम इन कंटिन्यूशन में हम निकालेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर द एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन का इक्वेशन मैंने लास्ट इसमें हमने किया था. ओके, कंटिन्यूइंग विद द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है आपके पास में, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे. सो दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स. ठीक है. फिर से वहां पे हम रखने वाले हैं कि x की वैल्यू लिखेंगे. सो एट मेन पोजीशन, मेन पोजीशन x विल बी इक्वल्स टू 0. सो एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल्स टू 0. एक्सेलरेशन नहीं होती बॉडी एट द मेन पोजीशन. सेकेंड, एट एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, x विल बी इक्वल्स टू a एंड a विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a ओमेगा स्क्वायर. सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द मैक्सिमम वैल्यू. एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगी a ओमेगा स्क्वायर. किसके लिए यूज होने वाला है? अगेन फॉर द 2 मार्क्स न्यूमेरिकल. एंड इजी न्यूमेरिकल से आप कंटिन्यू करो, देखो टेक्स्ट बुक में से.
बाकी का हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो.